Okay, so first of all, very good evening to everyone. Thank you for joining in and giving your precious time. I hope कि इस सेशन से जो टेकअवेज हो वो आपको रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे. So we'll begin with a very brief idea of the competitive exams, and after that, जो students का most common queries है, जो सबसे ज़्यादा dilemma face कर रहे हैं, those questions Karishma would be asking me, and I'll be answering them. And at the end of the session, somewhere around let's say 7:15, we'll open the session for audience questions. जब आप लोग अपने सवाल पूछ सके, and I'll be directly answering them. So let's start with a brief. My journey of UPSC and the other competitive exams started when I was in the final year of college. That time I decided that मुझे UPSC clear करना है, UPSC clear करके civil servant बनना है. But there were certain constraints, so I took up a job to financially support myself, and साथ ही full time job के साथ I did my preparation. Now UPSC मेरा जब prelims clear नहीं हुआ, so then I realized that we can't depend on one exam क्योंकि ये काफी uncertain है. पूरी मेहनत करने के बाद भी result आना is not sure. तो फिर दूसरे ऑप्शंस जो प्लान बी थे, जो बाकी एग्जाम्स करिश्मा ने आपको बताया कि एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ, इन सब के बारे में मैंने रीड करना, पता करना शुरू किया. एंड आई वेरी स्पेसिफिकली पिक्ड अप दोज एग्जाम्स जिनका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न यूपीएससी से ओवरलैपिंग था, सो दैट जो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है वो डीरेल ना हो और उसके साथ साथ ही हम बाकी के एग्जाम्स दे सकें. उनकी डिटेल्स में आई विल शेयर विद यू. और कोई पर्टिकुलर एग्जाम है जिसके लिए आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स दैट व्हिच एग्जाम इज इट दैट इज योर फर्स्ट फोकस राइट नाउ. आई हैव ओपन द चैट बॉक्स. प्लीज राइट कि कौन से एग्जाम पर आप लोग अभी फोकस कर रहे हैं. Love Verma has written UPSC, Sonali, SBI PO. Prof has written GATE. Kuldeep has written UPSC. Guys, please be a little bit participative, वरना ये monotonous और monologue टाइप का हो जाएगा. आपके क्वेरीज भी लिए जाएंगे, बट आप थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेंगे तो आपके क्वेरीज को और बेटर एड्रेस कर पाएंगे. याशिका हैज रिटन सीजीएल, यूपीएससी, ईओ. ओके. शिफा यूपीएससी. कोमल सीडीएस. Okay. So other than GATE, I have cleared most of these exams. College level, all state government exams. Okay. State government also I have given. ठीक है. So majorly जो feedback आ रहा है that is SSC, UPSC and GATE. Okay. ठीक है. So एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो एग्जाम का टफनेस है वो दो कारण से है. पहला ये कि yes, the knowledge that is required for this exam is very high and very diverse. Basically जो कहते हैं कि everything under the sun can be asked from you, that is very true. क्योंकि जीके है, मैथ्स है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, करंट अफेयर्स है, फिर उसके बाद आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक्सेट्रा. प्लस द सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट द पूल ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दिस profile or for this particular job is very high and the number of seats is very limited. So that is the second factor which makes it all the more difficult. The selection ratio is about 0.01%. Now, what will distinguish us or increase our chances of selection is a very strategic preparation, number one. And number two, कि हमें अपनी जो मेथड या मेथोडोलॉजी हम जो अडॉप्ट करेंगे, that has to be very streamlined कि हम एग्जाम की demands को cater करें rather than trying to become an expert of all the subjects or all the topics that are listed in the syllabus. Because what really happens is, and in fact initial years में मुझे भी failure क्यों मिला था, because I was trying to become excellent in the subjects that are mentioned or let's say in the topics that I feel are getting higher priority. So उस वजह से एग्जाम की डिमांड मीट नहीं हो रही थी. मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा मिल रही थी, बल्कि वो बहुत मेहनत से गैदर की थी, बट द प्रॉब्लम वाज दैट एग्जाम में क्लियर करने के लिए उसका एक
प्रॉपर रोड मैप होता है, जिस वजह से हम उसकी डिमांड्स को केटर कर पाए। अगर जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एसएससी सीजीएल कई लोगों ने लिखा, तो उसमें आपका जीके और आपका मैथ्स बहुत फास्ट भी होना जरूरी है, रिस्पॉन्स रेट। अगर हम यूपीएससी के सीसैट की बात करें तो आपको स्पीड उतना एसएससी सीजीएल लेवल का स्पीड नहीं चाहिए। सो अलग अलग एग्जाम्स का अलग अलग डिमांड है, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड केटर, and we'll delve deep into it, I think through Karishma's questions. So we can start with that, and respectively I'll pick up each topic which she asked and try to elaborate as much as we can. So Karishma, let's start with the questions so that we can address the most common doubts. Sure. तो जैसा भी आपने बताया जी, कि you were looking out for other options too इस phase में when you were also preparing for this exam. तो अगर एक student एक से ज़्यादा exams की तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले उसका first step क्या होना चाहिए, like कहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं? the first step in all honesty has to be कि आप एक एग्जाम अपना चूज करें कि ये मेरा प्राइमरी गोल है। जैसे कि हमारे ऑडियंस ने लिखा कि उनका प्राइमरी गोल एक पर्टिकुलर एग्जाम है, उसके लिए डेडिकेटेड वे में एक साल प्रिपेयर कीजिए, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट दीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी 2 अटेम्प्ट फोकस्ड, फुल 100% फोकस के साथ दीजिए। अगर उसमें नहीं होता है फॉर एनी चांस, मतलब कोई भी रीजन हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, डिमांड आप नहीं समझ पाई, आपको लगा था आप कर सकते हैं बट एग्जाम हॉल में रियलाइज हुआ मे बी दिस इज नॉट फॉर मी, देन ओनली थिंक अबाउट योर प्लान बी एग्जाम्स। दिस इज नंबर 1। अब प्लान बी एग्जाम चूज कैसे करें, जो आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है कि ओवरलैपिंग सिलेबस कौन से एग्जाम्स में है। जैसे कि मैंने ईपीएफओ दिया तो उसमें करीबन 11 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से 5 या 6 सब्जेक्ट्स एज इट इज कॉपीड है, बाकी सब्जेक्ट्स जो है मतलब 50-60% उनका ओवरलैप यूपीएससी के साथ है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 40% या 30% के आसपास आप कह लीजिए, जो बिल्कुल ही अलग है, जैसे कि अकाउंटिंग, जैसे कि कंप्यूटर्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस। वो इतना डिटेल में यूपीएससी में नहीं पूछा जाता, ना ही हम उसके लिए पढ़ते, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब यूपीएससी में भी आता है, ईपीएफओ में भी आता है। तो मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, बाय अंडरस्टैंडिंग के कौन से एग्जाम्स हैं जिनका सिलेबस ओवरलैप करता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन से एग्जाम्स है जिनका पैटर्न ओवरलैप करता है, कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हम प्रीलिम्स और जीएस और सीसैट जो यूपीएससी में देते हैं, वो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, 100 क्वेश्चंस व्हिच आर हैविंग एमसीक्यू फॉर्मेट। तो ईपीएफओ में भी ऐसा ही था, दैट 4 पार्ट्स 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन। तो हमने वो आइडेंटिफाई किया कि कौन से पैटर्न में मेरी स्ट्रेंथ है। सेम एसएससी सीजीएल इज आल्सो ऑब्जेक्टिव द टियर 1। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सिलेबस, कौन सा एग्जाम पैटर्न ओवरलैपिंग है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यूजुअली कहते नहीं है लोग, बट आई थिंक कि प्लान बी जब आप चूज कर रहे हो तो एक अपने लॉन्ग टर्म करियर को भी माइंड में रखो, कि ऐसा नहीं है कि बस भेड़ चाल में हमें एग्जाम निकालना है या हमें सरकारी नौकरी का टैग लेना है। आपको ये भी एक बार ही बैठ कर सोचना चाहिए कि ये एग्जाम क्लियर करने के बाद किस तरह की जॉब मुझे मिलेगी, किस तरह का मेरा लाइफस्टाइल होगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क क्या होगा। क्योंकि एग्जाम क्लियर करना इज जस्ट द बिगिनिंग। उसके बाद आपके लाइफ के 30-35 years until your retirement you have to do that work, you have to be in that profile. So the third aspect is कि कौन सी जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल ऐसी है जिसमें you feel there will be a sense of personal and professional accomplishment, fulfillment. These 3 factors. Okay, great. And the second question would be कि this is one of the most asked questions by the students कि जब इतने सारे resources available होते हैं like be it YouTube या Telegram या coaching notes, तब आप कैसे decide कर सकते हैं that which source is the one that you can trust on, and were there any productivity techniques or tools that have really helped you during your phase, like during your preparation? Very common question and also very relevant also. Yeah, right. क्योंकि आजकल जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है उसके लिए एक टर्म आ गया इन्फोबेसिटी, बेसिकली इन्फॉर्मेशन ओबेसिटी, दैट वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट रियली थिंकिंग अबाउट इट और हैविंग द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट इट। डाइजेस्ट मतलब उसको यूज कैसे करना प्रोडक्टिवली, मतलब हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड डेफिनेटली है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, के इंटरनेट पे सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो आप राजेंद्र नगर चले जाइए, आपको सारे कोचिंग मटेरियल्स फोटोकॉपी शॉप्स पर मिल जाएंगे, बुक्स आपको जो चाहिए आपको मिल जाएंगी। इंटरनेट के अलावा जो कुछ वेबसाइट्स हैं फ्री यूपीएससी मटेरियल्स करके, जैसे सारे टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। नाउ उसका बेनिफिट ये है कि आपको बहुत महंगी कोचिंग्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी नहीं किया था। बट उसका डाउन साइड ये है कि यू हैव टू बी योर ओन mentor and you have to decide the direction in which you will have to put your efforts. तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही हुआ था, आई डिड नॉट एनरोल एनीवेयर, आई डिड नॉट बाय एनी कोर्सेज, सो आई वाज स्टडिंग अ लॉट बट आई वाज स्टडिंग विदाउट अ प्रॉपर डायरेक्शन। अब आफ्टर trial and error I figured out कि बस ये वाले materials हैं which are actually being asked in the exam and these are the materials which are having relevant stuff for the exam.
अब उसमें आपका सॉल्यूशन ये है that the first thing is if you can directly connect with somebody who has given and cleared that particular stage of exam. Let's say आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 की बात करें या यूपीएससी मेंस की बात करें, क्योंकि इट इज डिस्क्रिप्टिव. बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव वीक है, मतलब जो टीयर 1 या प्रीलिम्स में आता है एमसीक्यू, तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से रीच आउट करें जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया हो सकता है किसी की स्ट्रेंथ प्रीलिम्स हो, किसी की स्ट्रेंथ मेंस हो. उनसे रीच आउट करके ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम which is the best source, number 1. Number 2, if you do not have access to such a mentor, then personally I'll be very happy to guide you on a Telegram channel or on Instagram. It is by Srishti2311. But if you don't have direct access, the second thing that you can do is there are at least a set of basic books that need to be done. For UPSC, very quickly I can tell you that polity के लिए लक्ष्मीकांत है, geography के लिए 11th 12th की NCERT है, ethics के लिए Lucent है. So those kind of things नीड टू बी डन. ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम बेसिक बुक्स को इग्नोर करके या अवॉइड करके डायरेक्टली किसी और रेफरेंस मटेरियल को यूज करके सक्सीड कर ले. यूपीएससी में तो नहीं चलता है ऐसा, नंबर 1. नंबर 2 इज आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, मान लीजिए आपके पास मेंटर भी नहीं है, आप इंटरनेट पे भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं कौन सी बुक्स आपके लिए सही है, और आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड फील हो रहा है, immediately pick up the last 5 years question papers of the respective exam that you are aiming for. अगर आपको एसएससी सीजीएल देना है, यूपीएससी देना है, गेट देना है, any exam, pick up the last 5 year question papers, read them, and at least एक PYQ की बुक ले लीजिए जिसमें subject wise PYQs are divided. और उसमें विजर्ड की पब्लिकेशन मैं यूज करती हूँ, उसमें लास्ट 25 years का है, उसमें टॉपिक वाइज उन्होंने डिवाइड किया हुआ है. तो अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो मुझे उसमें टॉपिक वाइज दिखा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, फंडामेंटल राइट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो व्हेन आई एम रीडिंग माय बुक, let's say Lakshmikant, I know that किस चैप्टर में कितना फोकस करना है और कहाँ से पढ़ना है. So that helps a lot. The third tool or the third weapon is PYQs. And the fourth thing is information overload के लिए please be decisive. आपने अगर एक बारी अपने मेंटर के साथ या अपने खुद के PYQ एनालिसिस से डिसाइड कर लिया that these are the sources I will follow, then please follow them wholeheartedly. You have to trust yourself and your mentor and your PYQs कि आपने जो एक बारी बुक उठाई है उसको आप अच्छे से करेंगे और रिवाइज करेंगे, बिकॉज एवरी ईयर और लेट्स से एवरी फ्यू मंथ वन और द अदर बुक गेट्स फेमस और गेट्स वायरल इन द मार्केट के सारे क्वेश्चंस, या मतलब 4 क्वेश्चंस इसी बुक से आ गए बट बाकी के 96 क्वेश्चंस भी है ना. तो हमें अपने ऊपर फेथ रखना है, बार बार अपनी डायरेक्शन नहीं बदलनी है. दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू ओवरकम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. I hope the students would have got a really important insight from that. So my next question would be कि books का you have suggested कि कैसे हम कौन से sources we can use, but books के अलावा जो भी real life experience होते हैं, be it internships, part time jobs या volunteering, how important is it for interviews and the personality traits? It definitely gives you brownie points. It is not essential, बट ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको आपकी प्रोफाइल को हाईलाइट करती हैं कि एक कैंडिडेट है जिन्होंने लेट्स से 6 साल केवल पढ़ाई की और अटेम्प्ट्स दिए एग्जाम के लिए. अपने यूथ के जो प्राइम ईयर्स हैं, हमारे जो 20s हैं, वो उन्होंने केवल एग्जाम प्रिपरेशन में डेडिकेट किए. नो हार्म इन दैट, बट दैट इज वन काइंड ऑफ कैंडिडेट. द सेकंड काइंड ऑफ कैंडिडेट इज जिन्होंने अपने यूथ के इयर्स में पढ़ाई तो की अपने एक हायर पर्पस या अपने पैशन के लिए, सर्विस के लिए, बट साइड बाय साइड दे वर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलबीइंग ऑफ देयर फैमिली, दे वर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, टू द इकोनॉमी by working, by helping others, or at least being self-sufficient. So that definitely shows that you are somebody who can manage or perhaps balance your personal and professional commitments while being self-sufficient. तो इंटरव्यू में मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और दोनों बार मेरी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए. और ये मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दैट इट डेफिनेटली गिव एन एज, बिकॉज दे नॉट ओनली आस्क्ड दैट were you working, they asked what were you working on. So that opened a new dimension of कि मैं जब जॉब करती हूँ या करती थी तब मैं क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी, उनका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, उनमें इश्यूज क्या आए, कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे डील किया, या फिर प्राइवेट सेक्टर से जो लर्निंग्स हैं वो कौन सी लर्निंग्स हैं जो हम गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो ला सकती हूँ. सो दैट डेफिनेटली गिव्स एन एज. हैविंग सेड दैट, इवन इफ यू आर समबडी हु इज इन कॉलेज और इफ यू आर डिसाइडिंग कि मेरे को सिर्फ एग्जाम देना है फुल फोकस के साथ, सो अलाउ योरसेल्फ 2 अटेम्प्ट्स
at least 2 attempts where you are only studying without any distraction. And after that, if you feel that this exam is taking more time or it might take a few more attempts, then please try to sustain yourself. अपनी कोई जॉब ले ली या कोई पार्ट टाइम इंस्टीट्यूट के साथ आपने काम कर लिया या फिर इंटर्नशिप कर ली, जिससे एटलीस्ट एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ भी इंक्रीज होता है, दैट हमें घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते बार बार, या फिर घर में कोई जरूरत होती है तो वी आर ऑल्सो देयर कि ठीक है, आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। एंड इफ यू आर blessed enough that you don't need to worry about the finances, then you can definitely focus on your exam preparation. Great. And the next question would be कि what's like the students would get benefited by learning your experience, that what's been one of your biggest setbacks in your exam journey, और उस phase में आपने कैसे bounce back किया, because when you have to stay focused and when the results are uncertain for months, जब results month तक नहीं pending होते हैं and uncertainty होती है, तो like बच्चे tense में आ जाते हैं, तो how to maintain that motivation throughout? Okay, first of all, I think I was getting personal request, so I've shared all my social media, number one, on the chat. You can reach out. And आपने जो question पूछा करिश्मा, ये थोड़ा nostalgic भी है, but after we overcome that tough phase, it feels a little bit better. क्योंकि वो बहुत tough phase होता है जब कोई आपको support नहीं कर रहा होता है, because after a point of time people feel that पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें अपने आप में एक सेल्फ डाउट आने लगता है कुछ फेलियर फेस करने के बाद। या फिर मेरे साथ तो ये होता था कि मैं मॉक टेस्ट रेगुलरली देती थी, तो जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो लगता था कि मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ, एम आई ऑन द रॉन्ग ट्रैक, क्या मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं कि कॉर्पोरेट में ही आगे करियर बढ़ा लूँ। तो फेलियर्स तो आते हैं, एंड उनसे डील करने का बेस्ट तरीका है कि अपना स्वॉट एनालिसिस खुद करें। स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए कि अगर मेरा मान लीजिए प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, यूपीएससी का हो, गेट का हो, कोई भी, क्यों नहीं हुआ? इन टर्म्स ऑफ क्या मेरे पास नॉलेज की कमी थी, ये एक रीजन हो सकता है। क्या मेरे पास प्रैक्टिस की कमी थी कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, या फिर मैं सारे क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ पाई कि मतलब 100 क्वेश्चन पूछे गए, मैं 80 या 90 तक ही पढ़ पाई। 10 जो थे उसमें से मेरे को कम से कम 6 तो आते थे। अगर पढ़ लेती, मतलब मेरी स्पीड अच्छी होती, तो मैं अटेम्प्ट कर लेती और मार्क्स मिल जाते। दैट इज नंबर 2, नॉलेज, प्रैक्टिस। नंबर 3, डिड आई नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। उसने मुझसे पूछा था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मैं ज्यादा पढ़कर चली गई साइंस एंड टेक या क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी 2021 में क्वेश्चन आया था क्रिकेट एंड फॉर्मूला 1 के बारे में। तो मैंने गलत चीज पे फोकस कर दिया, एग्जाम का डिमांड जो है वो एड्रेस नहीं किया। सो दीज 3 फैक्टर्स यू नीड टू एनालाइज कि मेरा वीकनेस कहाँ रह गया। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ, हो सकता है इनमें से ही कोई 3 फैक्टर्स हो जो आपका एक स्ट्रेंथ हो, कि मतलब नॉलेज है, बस प्रैक्टिस और करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्रैक्टिस की थी लेकिन गलत डायरेक्शन में की थी, अब सही अच्छी जगह के मॉक पेपर्स करेंगे तो हो जाएगा, या पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह अपना स्वॉट एनालिसिस हम करेंगे